Mhm. Hello, friends. A very warm welcome to this essay, which we have taken up from the previous year, and Mansi had written it because the mains examination is the crucial fulcrum. We are not writing too many because this has been part of our process and learning. But then still, when I discuss with her and ask her that let's make a kind of a very small, quick, and a very, very formal examination-oriented approach, so that can we extract something out of it? So this is the whole idea why we are doing this exercise. Let's go into it without wasting any moment. Topic says nearly all men can stand adversity, but to test the character, give him power. Now, in real examination conditions, you will make a kind of a mind map at the back. You can do some rough work. You can do some kind of, a kind of a storyline and whole thing. But then every candidate is having their own idea to do. Certain things are very, very, repetitive. Some people write code, some people like story in the beginning, but some people start straight away also. And let's see, every approach is workable, provided that approach is honest, approach is meaning making sense, approach is, on the fulcrum of exam and its competitiveness. It is standing, and not so many people are writing in the way you are writing. If you are writing also the way everybody is writing, then definitely we have to change ourselves. That's the only. So I won't say we are failure. We are wasting time. So the correct answer is let's change our approach. That's all. Whenever we learn, one has to change. That's how the success comes up. Nearly all men can stand adversity. Nearly all men. It is not saying everyone. Nearly all men. It is not just men only. It is about female also. But the quote was on males. Nearly all men can stand adversity, but to test the character, give him powers. First question arises, अगर आपको पता ही नहीं है कि who said the quote, is it going to cut your marks? So I would say no. Even if you don't know who said it, in which context it was said, in which environment it was said, it may be an additional value, provided whole other essay aspect are also on track. Otherwise, it is not a negative value. Behavior of an individual when in power is the true litmus test of his or character. As it is stated, with great power comes great responsibility. So it is swing. The essay starts with a swing, and it is directly on the topic, bang on. It is like a fast racing movie. The character of Adolf Hitler could be assessed when he reached the position of great heights. Power corrupted his thoughts and actions, which resulted in Holocaust and mass intentional murders of Jews. अब ज्यूज इन गैस चैम्बर्स, अब अगर यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छा एग्जांपल लिया, कंट्रोवर्शियल भी नहीं है, बहुत अमेजिंग भी है, और फासिस्ट टेंडेंसीज, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. लेकिन पंगा यहाँ पर ये है सिर्फ कि वो कंट्रोवर्शियल फिगर इस सेंस में है, नॉट एवरीबडी बिलीव्स कि वो हॉलोकास्ट है. अब हम कहते हैं कि ईरान से पूछो हॉलोकास्ट था, तो कहते हैं कुछ नहीं था, तमाशा किया था, इसमें झूठ था ये. अगर आप यूएस से पूछोगे तो हॉलोकास्ट था, यूके से पूछोगे तो हॉलोकास्ट था. लेकिन अगर आप अगर आप हिटलर के आइडियाज को आज की डेट में, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज को आप बोलोगे कि इसराइल भी हिटलर है, आज अगर आप बोलते हो, तो फिर वो आप बोलते हो इंडिया तो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है. इसका मतलब इनडायरेक्टली अगर इसराइल को हिटलर बोला जा रहा है, यानी वैसे कुछ आइडियाज हम भी उनको गलत नहीं मान रहे हैं किसी पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए. तो हमें हमेशा शुरुआत ऐसे उससे करनी है जो कि मतलब कि जो कि कंट्रोवर्शियल रहा हो बंदा, लेकिन वो कंट्रोवर्शियल आप पीछे के एरिया से ले लो, आप मॉडर्न टाइम से पहले ले लो. आप, मैं कहता हूं इंडिया के पंचतंत्र से लेकर आप हर्षवर्धन, मतलब आप किसी ऐसे राजा का नाम ले लो, औरंगजेब है जैसे, अब औरंगजेब को कह सकते हो आप, उसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है कि उसका माइंड करप्ट नहीं हुआ एज फार एज वेलफेयर एटीट्यूड इज कंसर्न. औरंगजेब करप्ट हुए, औरंगजेब एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत अच्छे हो सकते हैं, आपको लिखने का मौका भी मिलेगा कि औरंगजेब एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत जबरदस्त थे, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े अंपायर को इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद संभाल कर रखने की कोशिश की, लेकिन कुल मिला के वो फेल हुए. तो ये बस मेरे कहने का यहाँ पर पर्पस है कि हम इसको इस एंगल से भी देख सकते हैं. चलिए आगे. द राइज ऑफ colonialism and imperialism by western powers. First, as the 13 American colonies, rule of Britishers in India reflect the core of their character to exploit, extract, and replace the cost of others for materialistic gains and global hegemony. Do they really reflect the characters of developed world? Is being developed only related to the size of GDP and modern infrastructure? Stop. तो क्वेश्चन अराइजेस, इतना बढ़िया, इतना डेप्थ में जो ये पैराग्राफ है, एग्जामिनर ये सोचेगा हिटलर पहले क्यों आया, ये पहले क्यों नहीं आए, क्योंकि ये पहले आए थे, हिटलर इनके बाद आया है. अगर वो क्रोनोलॉजी भी देखता है आइडिया की, तो इसको पहले आना चाहिए था. चलिए आगे. इन द 21st century, the amassing tendency of rare earths of China by being larger. अब ये अपने आप में बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल दिया, बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल दिया, लेकिन इस एग्जांपल के पीछे जो खाल होनी चाहिए, जो एक थॉट प्रोसेस डिराइव करता है किसी को भी ऐसा बनने के लिए, वो थॉट प्रोसेस हम नहीं बता रहे हैं. हमने इवेंट तो बता दिया, हमने इवेंट के कारण कॉन्सिक्वेंसेज बता दिए. सडन स्टॉपिंग ऑफ मैग्नेट एक्सपोर्ट्स टू इंडिया इज ऑन सिमिलर लाइन. दिस शोकेसेस द इमेज ऑफ बीइंग ए हेजेमोनिक पावर in a unipolar world.
दैट डिसरप्ट्स द रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। यानी अगर शुरू के 2-3 पैराग्राफ हमारे सिर्फ ये बात करते कि भाई कि पावर आती है, पावर आती है, तो पावर इंसान के पास अगर पावर आती है तो क्या दूसरे लोग ऑटोमेटिकली पावरलेस हो जाते हैं? या जिसके पास पावर आती है तो क्या वो एडवर्सिटी के अंदर हमेशा क्रम्बल हो जाता है कि नहीं होता है? ऐसे करके अगर आप थोड़ा डिबेट करते, थोड़ा फिलोसफिकली डिबेट करते, वेदास के समय से लेकर आप बोलते पावर राजन्य के पास भी आई थी, तो क्या राजन बाद में करप्ट हुआ? राजन पहले जो है वो हेजीमोनी से नहीं, उसको चुनाव हो रहा है, इलेक्टेड हो रहा है राजा का, फिर उसके बाद आपका कास्ट सिस्टम और आपकी डिस्क्रिमिनेशन को इंट्रेंच कर दिया, तो वो भी एडवर्सिटी नहीं हुई ना? एडवर्सिटी तो वो हो गई जो उन्होंने ऑटोमेटिकली आपने कर दिया। फीमेल को, वनरेबल सेक्शन को आपने और ज्यादा एक्सप्लॉइट करके आपने ये प्रूव किया कि यू आर एक्चुअली अ पर्सन ऑफ अपॉर्चुनिस्ट नेचर। आपने अपॉर्चुनिज्म को आगे बढ़ा दिया, इंडिया ने ऐसा नहीं किया। फिर आप लेकर आते, आप कहीं ना कहीं जैसे अभी अभी भी अगर मैं रिसेंट की बात करूं, हाउ एंड व्हेन आवर इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन लास्ट 1 decade हैव स्टूड अगेंस्ट ऑल दीज एडवर्सिटीज। फिर ऑपरेशन सिंदूर भी डाल दो कोई जिसको डालना है, उसके बाद जो है आपने करप्शन के अगेंस्ट की फाइट डाल दो, बिना ज्यादा अपीज किए हल्का सा हो सकता है। चलिए आगे। Whereas on the other hand, under Operation Sindoor, wow, India not just evacuated its own nationals from Iran, but neighboring countries too. This reflects the character of a responsible nation state that, as propounded by under the Professor Vasudev Kattumkar. तो क्या हो रहा है इस एस्से में? हम पहले बात बता रहे हैं, फिर उस बात को हम वैलिडेट कर रहे हैं अपनी फिलॉसफी के पॉइंट से। हो उल्टा भी सकता था कि पहले फिलॉसफी बताते, फिर हम पॉइंट बोलते, उससे हमारे हाथ में फिलॉसफी की तार रहती। हो उल्टा गया, अब हमें हर बार एक पहले एलिमेंट लेके आना पड़ेगा, उस एलिमेंट को फिर हम फिलोसफिकली डिस्क्राइब करके हम बाद में करेंगे। अगर आप उल्टा करते इसको तो आपको और आसानी होती। जैसे हम आगे देखते हैं, सिमिलरली इंडिया clearly stands by peace and humanity as stated that it is not an era of war. Parallelly, other nations, that so-called world power who are permanent members of UNSC, are acting as proxy players in fueling Russia-Ukraine war to fulfill their narrow interest. Showcases their character. They made a choice that violates the very spirit of United Nations, contributing to division and destruction. बहुत ही अच्छा पॉइंट लिखा, बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी है, उम्दा उम्दा, मुझे कहूंगा कि उम्दा पैराग्राफ है, लेकिन पैराग्राफ भारी हो गया, पैराग्राफ बहुत इवॉल्व है। आपको और ऑब्जेक्टिविटी से बताना था, आपको और ऑब्जेक्टिविटी से ये बताना है कि नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी, लेकिन कैरेक्टर का जब पता चलता है तो वो बात को ना पकड़ के रखना है। उस बात को, बात तो बिल्कुल सही हो रही है, लेकिन ये बात बहुत ऑब्जेक्टिवली से नहीं बताई जा रही। चलिए आगे। सर लेकिन कैरेक्टर की तो बात हो रही है। करेक्ट पावर करेक्ट, और लेकिन कैरेक्टर। कैरेक्टर की बात हो रही है, या तो आप विश्व का कैरेक्टर बताते कि वर्ल्ड का जो ग्लोबल ऑर्डर है उसका कैरेक्टर ये है, वर्ल्ड के जो सुपर पावर है उसके कैरेक्टर ये होते हैं, लेकिन देखो उसमें से ये कैरेक्टर बिगड़ गया, ये कैरेक्टर देखो ऐसा और इंडिया का ऐसा है। वो जो थीम नीचे वाली है वो कहीं ना कहीं किसी पैराग्राफ में पहले आनी चाहिए, क्योंकि हम इंडिविजुअल को या वर्ल्ड के किसी भी इवेंट को या एंशियंट इंडिया के भी किसी इवेंट को या मॉडर्न इंडिया को या किसी भी चीज को हम अचानक से नहीं ले सकते। उसके पीछे भी हमें एक थॉट प्रोसेस को जो आ रहा है माइंड में, जिसके बाद हम्म। आपके पास ये आइडिया आ रहा है, उस थॉट प्रोसेस को आपको लेके आना पड़ेगा। जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री आ गई, तो मेरा सवाल ये है कि ये यहीं क्यों आएगा? ऐसा क्या था जो कि आपने यूक्रेन रशिया वॉर लिखा और उसके बाद अब बड़े इजीली पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया पे आ गए? वो बीच का थ्रेड कहाँ है? आपकी हम्म। बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं क्यों समझूं? मैं समझने से इनकार करता हूं क्योंकि मेरे पास एविडेंस नहीं है। हम्म। बात समझे? जी। तो मेरे पास एविडेंस होना चाहिए। द पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज फुल ऑफ इंटरेस्टिंग इवेंट लाइक पंडित जवाहरलाल नेहरू served as prime minister India for 17 years and strengthened foundation of democracy, whereas Pakistan got entangled in। अब ये आ गया, ये भी दो कंट्रीज का कैरेक्टर आ गया। तो आप पहले बात करते कि हर व्यक्ति को, हर समाज को, हर नेशन को, या इवन धरती माँ के साथ यानी प्रकृति के साथ जो हमारा व्यवहार है, सबके साथ हमें अपना कैरेक्टर बताने का मौका मिलता है। लेकिन क्या हम एडवर्सिटी के अंदर उन प्रिंसिपल्स को स्टैंड कर पाते हैं जो प्रिंसिपल्स विश्व को आगे बढ़ाते हैं? जब जब ऐसा देखा गया है, आप कहो, जब जब ऐसा देखा गया है तब तब हमें कॉन्ट्रास्टिंग आंसर्स मिले हैं, और बस आप फिर उसके बाद डिस्क्राइब करना शुरू करो। फिर एक हम्म। प्लस हो गया, एक माइनस हो गया, एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया बात बस। तो वो जो नीचे वाला थ्रेड है वो भी आना चाहिए ना। अब आप लेके आए एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, सीन ड्यूरिंग इंस्पेक्टर एंड लाइसेंसिंग राज। अब इंडिया पे आ गए हैं हम, इंडिया में आपने एक एलिमेंट उठाया, लेकिन इंडिया का वो बात तो बताओ इंडिया के कैरेक्टर की 2 लाइन में कि आप क्या बताने, क्यों बताने जा रहे हो ये? जी। ड्यूरिंग ऑल्सो द 2G स्कैम, 30,000 करोड़ फ्रॉड बाय विजय माल्या। अब 30,000 करोड़ नहीं है विजय माल्या का प्रॉब्लम, प्रॉब्लम विजय माल्या का ये है, विजय माल्या रिफ्लेक्ट्स द काइंड ऑफ पावर और
the resources which are having with the industrialized class in India, and in spite of government's commitment and also its functioning, they are able to what I can say, swindle. They are able to swindle. They are able to, they are able to exploit the loopholes. जबकि वो उसी जी लूप होल को पॉजिटिवली देख सकते हैं, लेकिन उन्होंने जानबूझ के उसको नेगेटिवली देखा। और उसके बाद जो है, मतलब आपकी एम्पैथी नहीं है आपके पास। मैं जी अगर देख रहा हूं कि आपको चोट लगी है, तो जब तक आप बोलते नहीं हो कि मुझे 2 रुपए की बैंडेड दे दीजिए, मुझे हम्म आपके हाथ से खून गिरने का कोई भी कष्ट होना नहीं चाहिए। हाँ, तो वो आना चाहिए। चलिए आगे। इन द सोशल रैल्म्स। अब सोशल रैल्म आया तो एक कैरेक्टर भी शुरू में आना चाहिए था ना, जो कैरेक्टर की बात है, उसके बाद ये सारे उसके लिम्स हैं। तो आपको हम्म शरीर बताना पड़ेगा, तो लिम्ब बताओगे। आप अचानक से नहीं बोल सकते हाथ पैर, भैंस की टांग, हाथी का डायरेक्ट सूंड। वैम्पायर्स नहीं आ In the सकते। social ramp, patriarchy is also power viewed by males to do anything they may feel is that this give rise to male chauvinism behavior, domestic violence, marital rape, female infanticide, are drastic heinous outcomes as a result of it. इसमें आप लेके आते वो जो कौन सी यादव थी जिसके साथ अभी हुआ, या फिर आप कोई फेमस पर्सनैलिटी लेके आते जिसने ऐसा झेला, या फिर आप गौरी लंकेश लेके आते कि जिन्होंने सही चीज करने की कोशिश की। लेकिन टॉपिक हमारा है कि सब मैन एडवर्सिटी झेल सकते हैं, लेकिन क्या आप जिसको पावर दे दोगे उसका कैरेक्टर चेंज होगा? तो गौरी लंकेश ने तो एडवर्सिटी के कारण ही अपनी जान दी, अंधविश्वास के खिलाफ बोली, फासिस्ट टेंडेंसीज के खिलाफ बोली, और उसको शांत कर दिया गया, उनके साथ गलत किया गया। ये हीनियस क्राइम हुआ जिसका आज तक रेजोल्यूशन आई बिलीव अभी भी पेंडिंग है। सो बट इज पावर द ओनली इंडिकेटर ऑफ नोइंग द ऑनेस्ट कैरेक्टर ऑफ पर्सन? शुरू में आता मदर टेरेसा एक्टेड एज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। या शुरू में नहीं है, लास्ट में ही लाई है, लेकिन ये एंडिंग बहुत अच्छी हो सकती है इससे, जो होने की मुझे लग रहा होने जा रही है। Reformer to save children and lives when it was sole resolve and ambition drove her towards social welfare and not power. She fulfilled her duty towards the society as a responsible citizen. Similarly, we as citizens ensure, आप यही क्या, आप पावर तो आप लाइए, पावर आप लिख दीजिए। हमारे जो इवन आप अगर थोड़ा सा ये वाला एंगल देना है, जैसे अब कुंभ मेला है, वो पावर का कैरेक्टर, वो पावर का सिंबोलिज्म नहीं रहा। कुंभ मेला हम्म कैरेक्टर का सिंबोलिज्म हो गया भी पॉजिटिव। वहां पे दांत चेक हो रहे हैं, वहां पे आंखें चेक हो रही है, वहां पर सारी चीजें हो रही हैं। वहां पर उन्होंने उसका कैरेक्टर चेंज कर दिया। रिलीजन का कैरेक्टर भी हमने व्यवहारिक बना दिया, पावर दी गई ना सरकार को, सरकार ने उसका कैरेक्टर चेंज कर दिया। समझे आप मेरी बात को? वो सिर्फ घंटी बजाने से या दूध चढ़ाने से प्रभु जी को नहीं रहा सिर्फ, उसके हम आगे चले गए। Similarly, we citizens, if ensure obeying traffic rules, stop use of plastic, segregate garbage into bio and non-biodegradable waste, and I think wonderful points in the essay. Like the judicial use of power to vote decides character of a country of future. Rising number of youth voters in ECI makes casting votes in India in an informed way or more crucial factor. First comes the fair participation in elections, then the basis for caste vote. This is the character of duty-bound, honest citizens of a country. Therefore, a fair mix of power. The time assessment decides the best true character of the subject. It can swing to other extremes of welfare orientation और सेल्फ इंटरेस्ट एंड फुलफिलमेंट। यानी मैं कहूंगा सारे एलिमेंट ऐसे के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद हैं। सारे एलिमेंट अपनी जगह त्राही 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 करके चिल्ला रहे हैं कि हाँ मैं जरूरी हूँ। कोई भी एलिमेंट दो जगह मैं नहीं कह सकता कि रिपीट हुआ। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो बिल्कुल कॉन्सिक्वेंशियली नहीं है, लेकिन उसकी पोजीशन, आप पोजीशन ठीक लेके आओगे। साथ में पोजीशन ठीक लाने के बाद आपने जैसे बाद में कितना सिंपल, कितना औसम चीजें लिखी कि वोटिंग, और उसके बाद आपने सब बता दिया। शुरू से भी अगर वो भारी होने की जगह थोड़ा इतना ही सिंपल रहता, थोड़ा सिंपल रहता जो बाद में हो गया है, और वो जो है तो, और पीछे अगर आप बात करते थोड़ा लाइट हार्टेड होकर, लाइट हार्टेड का मेरा अर्थ है कि आप बताते कि भाई पावर, मतलब पावर का आप ये भी लिख सकते हो कि वाकई पावर मिलने के बाद भी आदमी को 10-20 साल तक पता लगता है कि पावर है भी क्या, या सिर्फ वो मतलब उसी को हैंडल सीखने में ही 10 साल लग जाते हैं उसको, फिर उसके बाद वो फैलना शुरू होता है। अगर फैलना भी है तो शुरू में जो फैल रहा है वो तो पहले ही ब्लास्ट हो जाएगा। एक जी समय आता है उसके बाद हमारे व्यवहार में एक परिवर्तन आ जाता है। हमारे व्यवहार के अंदर एक ना चाहते हुए भी हम फैल जाते हैं, हमारा ट्रू करेक्टर बाहर आ जाता है, जैसा कि वो भी कह रहा है। तो ट्रू करेक्टर इसीलिए लोग कहते हैं ना, आप ले आते लेके आना, तो इसमें ये भी है भाई, एक कपल जो होता है जब शादी करता है बड़ी बड़ी कस्में खाता है, और लोग कहते हैं कि एडवर्सिटी साथ रखती है, लेकिन उनके पास तो पैसा भी है, उनके पास तो करोड़ों रुपए की संपत्ति भी है, फिर भी डिवोर्स होता है और एलमनी भी बढ़ती है, फिर दोबारा भी ब्याह हो रहा है। तो ये भी जी एक दिखा रहा है ना, समाज का कैरेक्टर तो दिखा रहा है। समाज के हम्म यदि मूल्यों का ह्रास होगा, समाज के यदि व्यक्तित्व का ह्रास होगा, तो समाज में लोनलीनेस आएगी, समाज के अंदर हर चीज का कॉमोडिफिकेशन हो जाएगा है। चाहे फिर वो रक्षाबंधन हो, चाहे फिर वो दिवाली हो, चाहे फिर वो होली हो, वो दिवाली होली नहीं रह गए, वो बाजारवाद का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो गई है वो, कि हम्म होली आ रही है तो इतने करोड़ों अरबों रुपए का मेरा व्यापार होना चाहिए, होली आ रही है तो मेरा ये होना चाहिए, सोने का सिक्का प्रभु को चढ़ाना है हमें, मान लीजिए लक्ष्मी गणेश का,
लेकिन आप 1 लाख रुपए भी तो देखोगे, 1 लाख रुपए हम्म। ग्राम हो गया है। और उसके बाद आम जीवन के लिए तो अरे आप उसकी जगह जो घास होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दुर्बा, क्या बोलते हाँ हैं दिव्या जी, उसको? दुर्वा बोलते दुर्बा ही बोलते हैं ना उसको भी। अगर आप ऐसे टपका के आप अगर भगवान पे मार के और आप प्रणाम करते हो, आई कैन अश्योर यू दैट दैट कैन ऑल्सो लीड अस समवेयर। तो मैं कृपणता की बात नहीं कर रहा, लग्जरी चाहिए, लग्जरी उसको जरूर मिलती है जो मेहनत करता है, लेकिन उसका एक बैलेंस आ जाए। तो आई थिंक दिस वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एसे, विच आई हम्म। कुड नॉट हैव एक्सप्लेन टू यू प्रोबब्ली अगर हम उसको अलग से ऐसे बात करते जैसे हम बहुत सारी चीजों पे करते भी हैं। इसलिए थैंक्स टू दिव्या जिसने ये आइडिया बोला कि सर 7 से 10 मिनट के अंदर अगर हम चीज को समझ सकें और उसको हम रिपीट से देख सकें, क्योंकि ये बहुत ही ऑनेस्टी के साथ लिखे गए, टाइम बाउंड तरीके से लिखे गए, और आपने कोई इसमें किसी तरह का कोई भी कहना चाहिए मुझे, कोई आपने चीटिंग नहीं की, कोई इसमें कैर्लेसनेस नहीं है, कोई कैजुअल नहीं है। अब आप बताओ कि आप इसको कैसे देखते हो? सर यही कि अकॉर्डिंग टू द टॉपिक जो है, मैं जैसे दोनों एसेज में मैंने अप्रोच सेम ही रखी, डायरेक्ट एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया। पर जैसे आपने बोला कि पहले एक वो प्लॉट होना चाहिए, उसको जनरल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना चाहिए, उसके बाद उसको एग्जांपल से कनेक्ट करना है, तो वो कनेक्टिविटी बनी रहेगी। और पैराग्राफ्स के बिटवीन भी जैसे मैं कौन सा नेक्स्ट टॉपिक उठा रही हूँ, तो वो भी ध्यान रखना है मेरे को कि वो वो पीछे से आना पहले। क्यों आया वो? हाँ, वो भाई मैं क्यों। बात सारी कर सकता हूँ आपसे, लेकिन बात को मेरे को पहली बात से कनेक्ट करना पड़ेगा ना। हाँ जब मैं ये जी। बोलूंगा कि हमारा हर ध्येय, हमारा हर काम यार तेरे भले के लिए है, फिर आप मुझे हम्म। बोलते हो कि सर आपने 2 किलो रसगुल्ले जो ये मुझे भेजे, मतलब आपने जी। मतलब मुझे भेजेगा, मतलब आपको मैंने बोला 2 किलो रसगुल्ले खाओ, फिर आपने बोला हम्म। ये मेरी मदद कैसे कर रहे हैं? हाँ। तो फिर जब मैं आपको समझा पाता हूँ कि भाई आप जो है, जब आप हार्ड वर्क करते हैं, या जब आप जो है, आपकी बॉडी का जीनोटाइप ऐसा है कि आप हम्म। अगर थोड़ा मीठा खाते हैं तो आपको ताकत ज्यादा आती है, मान लीजिए, हम्म। तो वो उस व्यक्ति के लिए सही हो गया, लेकिन उसके लिए सही नहीं हुआ ना जो व्यक्ति ऑलरेडी मिसमैनेज्ड है। हाँ तो शुगर इज नॉट द कल्प्रिट, जी। शुगर इज वेरी एसेंशियल। लो शुगर हो जाए तो आदमी खत्म हो सकता है, हाई शुगर से तो बाद में मरेगा। हाँ। लो शुगर से, लेकिन उसको भी फिर हमने मिसगाइड नहीं करना है क्या? हाँ जी। अब आप भारत की जितनी मिठाइयां हैं, कमाल की बात यह है कि आप उसका डब्बे को पलटिए और उसमें पाम ऑयल है, हम्म। यानी पाम ऑयल इंपोर्ट भी कर रहे हैं और दबा के हम उससे मिठाई भी बना रहे हैं। जबकि जी। होना ही चाहिए था कि उस आप सरसों के, आप कम मिठाई बनाओ, मिठाई कम होनी चाहिए। घर में भी, घर में मिठाई बनाने का प्रचलन था पहले। वो इतना बाजारवाद कैसे हो गया? तो वही बात है, तो मतलब कि आपको प्लॉट तो देना पड़ेगा, बिना हाँ प्लॉट जी। के। तो अब आप क्या हाँ। बोलते हैं कि हाउ मच यू कैन स्कोर इन द फर्स्ट एंड द सेकंड एसे, सर बिकॉज दीज स्कोर आर तो, पार्ट 1 एंड पार्ट 2? सर स्कोर तो आप ही बताएंगे, मैं तो अपना नहीं नहीं, बेस्ट। मतलब यार आइडिया लगता है, जैसे आप पहले वाले एसे में मैं कह रहा हूँ 45 से 50%, 50% के आसपास भी हो सकता है एवरेज स्कोर के हिसाब से, अगर मैं बोलूँ तो। अगर एवरेज हम्म। 42% है तो हमारा उससे ज्यादा आएगा। अब सेकंड एसे में अगर एवरेज मान लीजिए 42% है, 44% है, तो हम एवरेज पे कहीं ना कहीं हमारा अटक सकते हैं हम एवरेज के ऊपर, हम्म। बिकॉज 50% इज अ डिसेंट स्कोर, वेल स्कोर। एंड देन anything more than 50% is a bonus, 130 out of 250, हम्म। 140. So that is amazing, and you are cruising towards it. जी। सर यही है, मतलब मेजर तो मेरे लिए लर्निंग्स ही हैं, उसी को अकॉर्डिंग टू द टॉपिक थोड़ा ध्यान रखना है मेरे को कि मैं कैसे अप्रोच लूंगी ऐसे में। बाकी Yes, मेन तो यही है कि एग्जाम्पल्स के थ्रू और जो मेजर इवेंट्स है वो ही आने चाहिए। wonderful, great. So so Divya, can you just summarize in 2 3 lines? जी सर। सर फिलोसफिकल और इथिकल आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से कर रहे हैं, एग्जाम्पल जो डाल रहे हम्म। हैं वो कनेक्ट होने चाहिए, हम्म। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों को यूज कर सकते हैं सर। हाँ, कुछ भी यूज करो, उसमें कोई पंगा नहीं। जी सर। आप कुछ भी करो, लेकिन वो इतना सरल होना चाहिए। जैसे छोटा सा बच्चा जो होता है, वो अगर बारिश में बाहर स्कूल गया है, तो आप उसका पढ़ के विजुलाइज कर पाओ कि कहाँ उसने छपाक पानी में पैर रखा। जी। एक बार मुझे याद है कोई गेम भी ऐसा बहुत फेमस हुआ था, एक मछली गई छपाक, पता नहीं ऐसे करके वायरल कुछ हुआ था। दिस रिमाइंड्स मी। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच टू बोथ ऑफ यू एंड एवरीबडी एल्स आल्सो, एंड वी ट्राई टू understand, we try to learn, we try to revisit. That is the whole idea, in order to get our goal